Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Ram, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
हरे कृष्णा। तो अब हम अनुरोध करते हैं धर्मराज प्रभु से। धर्मराज प्रभु, कृपया आप अनम्यूट करके आज का जप पाठ प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा। सुने दे रहे प्रभु जी? जी जी जी। ओके, थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमितं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम और गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज मुझे जपा टॉक देने के लिए सेवा दी है गुरु महाराज की ओर से, पद्मालीपुर ने बताया था, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जैसे सभी जानते हैं कि जो कपिल भगवान और माता देवहूति, इनके बीच में जो विशेष संवाद हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम भक्तों के लिए भी उसमें से बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो जब देवहूति ने कपिल भगवान से अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, मैं चाहती हूं कि जो मैं भौतिक जगत में जो आसक्त हूं, या मैं जो हर समय भौतिक जगत का ही चिंतन करती हूँ, या फिर मेरी आसक्ति है घर परिवार में, इस विश्व में, संसार में, तो मैं चाहती हूँ कि इस आसक्ति से मैं छूटूं। तो कपिल भगवान बहुत विशेष उत्तर देते कि हे माँ, ठीक है, आपको अगर आसक्ति से छूटना है तो उसके लिए और एक चीज में आपको आसक्त होना होगा। तो देवती माँ कहती कि हे पुत्र, क्या कह रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ कि आसक्ति से कैसे छूटना, तुम कह रहे हो कि आसक्ति से छूटने और एक चीज में आसक्त होना चाहिए, ये क्या बात है? तो कपिल भगवान कहते हाँ माँ, सही है ये, क्योंकि अगर आपको भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है उससे अगर छूटना है तो आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे साधुओं में आसक्त होना है जो बिल्कुल अनासक्त है। उनमें आसक्ति उत्पन्न होने से क्या होगा कि भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है उससे हम बिल्कुल पूर्ण रूप से छूट सकते हैं। तो इसके पश्चात जो कपिल ऐसे माँ तो है भगवान की माँ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाँ तुरंत स्वीकार करने वाला थोड़ी है। पूछा कि अच्छा साधु, तो साधु क्या है, कौन है साधु, क्या लक्षण है साधु उनके? तब भगवान कहते कि तितिक्षवाः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणः। भगवान कहते हैं कि साधु वो है, ऐसे बहुत सारे लक्षण है, फिर भी कुछ लक्षणों को बता रहे भगवान। भगवान कहते हैं कि तितिक्षवाः मतलब जो बड़े सहनशील है, जिनके हृदय में करुणा भरी हुई है अन्य जीवों के प्रति, जो अन्य जीवों को अपना मित्र मानता है। और अजात शत्रवा, जिनके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया है। और फिर शांता, जो हर समय शांत रहते हैं। और साधवा मतलब जो शास्त्रों में जो बताए, विधि विधान बताए, उसके अनुसार वो आचरण करते हैं। और यही क्या है, उनका भूषण है, उनके अलंकार है, उनके गहने हैं, यही उनके ऑर्नामेंट्स है। अलग कुछ गहने पहनने की जरूरत नहीं साधु को, यही क्या उनके भूषण है। तो फिर अगर हम तितिक्षवा, जो सहनशीलता जो गुण है साधुओं में, उसके बारे में अगर चर्चा करते तो सहनशीलता तो एक बाह्य रूप से हम देखते हैं, कोई कुछ बोल रहा है सामने से या फिर जो कुछ कह रहा है तो फिर उसको कुछ नहीं बोलेंगे, शांत बैठेंगे, वो भी सही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पीछे हमारे कोई निंदा कर रहा है, तो हमारे ज्यादातर हमारा ऐसे होता है, कोई हमारी निंदा करे तो हम भी कुछ तलवार निकालते, हम भी बस उनका लिस्ट निकाल दे पूरा, ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे साधु की बात नहीं हो रही, ऐसे साधु की बात हो रही जो मतलब उनकी निंदा भी जब सुनते हैं स्वयं की, तो भी क्या करो, कभी निंदा नहीं करते, वो सहनशील रहते हैं हर समय। या फिर ये भी होता है कि जो जो पता लगता है उनको कि कोई मेरी निंदा कर रहा है,
उनके अच्छे गुणों को ही बताएंगे और भी। ये साधु का लक्षण है। जैसे उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, जो 5वें श्लोक में बताते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत दीक्षा चेत पणति बीच भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिषु निरिद्मिप्सित संगलब्ध्या। इसका अर्थ से श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्तों के 3 अलग अलग स्तर बताते हैं। हमें क्या करना चाहिए? कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत, जिसके जीवा पर भगवान का नाम है तो फिर उनको हम मन से प्रणाम करना चाहिए। और जो दीक्षा चेत प्रणति भीष, मतलब जिसने दीक्षा प्राप्त की उसको प्रणाम करना है। और विशेष रूप से ये कहा गया कि तीसरा इसमें बताते हैं कि जो निंदादि शून्य हृदय संगलब्ध है, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, उसकी केवल मतलब केवल ये नहीं कहना कि चलो वो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है वो ठीक है, अच्छा नहीं। उनका क्या करना चाहिए? वो निंदादि शून्य, जो निंदा भी बिल्कुल नहीं करे किसी की, उनका क्या करे? जो उनका मतलब संग लब्ध, उनकी शुश्रूषया, उनकी सेवा भी करनी चाहिए और उनका संग भी प्राप्त करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु तो है बहुत। एक बार मैं ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक बार मतलब ट्रेन में गया, लेकिन मेरा वेटिंग टिकट था और कंफर्म टिकट नहीं मिला था। तो मैंने टीसी को रिक्वेस्ट किया कि क्या मुझे कंफर्म टिकट मिल सकता है, क्योंकि रात भर सफर करना है। रात भर सफर करना है तो फिर क्या हो जाएगा, सफरिंग बढ़ जाएगा अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे। मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं टिकट दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। भाई क्या शर्त है? मुझे लगा ज्यादा कुछ मांगता होगा। उससे कुछ नहीं, आपको देना है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। भाई क्या प्रश्न होगा? शायद रात भर उत्तर ना मिले और बोलेंगे बैठ जाओ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रश्न है, आप तब तक यहाँ बैठ जाओ, मैं पूछता हूँ। तो आ गए स्वयं, पूछा प्रश्न है मेरा, क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा कि क्या साधु लोग कभी फाइटिंग करते हैं? मैंने कहा साधु लोग फाइटिंग, तलवार वगैरह लेके फाइटिंग करते हैं? ऐसा कुछ? साधु लोग थोड़ी फाइटिंग कर सकते हैं। साधु लोग वो है जो क्या है, सहनशील है, जो वास्तव में साधु है। जो फाइटिंग कर रहे हैं, तलवार निकाल रहे हो, कैसे साधु हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको टिकट कंफर्म टिकट दे देता हूँ। दे दिया उन्होंने। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने गुरु महाराज में हर समय इन गुणों को देखता रहता हूँ कि इतने कितने सारे लोग कुछ भी ना बोलने दो, फिर भी गुरु महाराज कभी भी किसी की निंदा करते मैंने पिछले 30 साल से कभी देखा नहीं। उल्टा तो गुरु महाराज उनका गुणगान ही करते रहते हैं। और ऐसे साधु का जब हम स्मरण करते हैं या उनका संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम बहुत लाभान्वित होते हैं भक्ति में। 20 साल पहले की बात है, मैं जब अरोड़े में था, तब गुरु महाराज की माँ भी वहां पे थी, इस भौतिक जगत धरातल पे। तो उनका अंतिम समय था और गुरु महाराज जी अरोड़े में आके फिर मिले गुरु वहां से, और मिलके फिर पंढरपुर और सोलापुर में थे, और कहा कि कुछ है तो फिर बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, पास में हूँ। और फिर गुरु महाराज रामनवमी का उत्सव था, शायद सोलापुर में आए थे, फिर पंढरपुर में आ गए। और फिर तभी क्या हो गया कि रामनवमी हो गई, फिर दूसरे दिन दशमी हो गई, एकादशी भी हो गई। और एकादशी दिन गुरु महाराज की माँ ने कहा कि मैं कुछ अन्न, कुछ नहीं, जल भी नहीं लूंगी, बिल्कुल निर्जल करूंगी। उनके साथ जो सेवा करने वाले भक्त थे उनसे कहा। और एकादशी के दूसरे दिन ही सुबह के समय इतना महाराज के इतना स्मरण कर रही थी माँ, गुरु की माँ, महाराज कहाँ है, महाराज महाराज, हर समय मैं तो वहां आसपास था, मैं देख रहा था कि गुरु महाराज की माँ महाराज 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 का स्मरण कर रही है। और महाराज का स्मरण करते करते उन्होंने क्या किया, अपने देह को छोड़ दिया। तब गुरु महाराज ने फोन किया, मुझे पूछा कि हाँ माँ तो चली गई, क्या करना है, आइए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जब शुद्ध भक्तों का स्मरण करने से ही क्या हो जाता है, हमारे सारे भव बंधन निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब इस धरातल पर थे, तब उनकी एक शिष्या ने श्रील प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था। प्रभुपाद जी भारत में थे और उनकी शिष्या विदेश में थी। उन्होंने पत्र लिखा, श्रील प्रभुपाद आप बहुत समय से यहाँ पे हमारे यहाँ आए नहीं हो, और फिर हमें आपका इतना विरह सता रहा, इतना स्मरण हो रहा है कि आप, हम सोच रहे कब आएंगे आप। और उन दिनों में ऐसे नहीं कि फोन नहीं होता था, या फिर फोन ऐसे मोबाइल है, या फिर अभी वीडियो कॉल वगैरह होता है, ऐसे नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही विशेष उत्तर दिया अपनी शिष्या को। प्रभुपाद जी ने लिखा कि देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि एक शिष्य को अपने गुरु का विरह का अनुभव होना ही चाहिए उनके होते हुए भी। अगर जब तक हमें अपने गुरु के विरह का अनुभव नहीं होता है, तब तक हम भगवान के विरह का अनुभव हम कैसे भला कर सकते हैं, नहीं ना? तो इसलिए हमें
मैं ऐसे सोच रहा था कि हर रोज प्रतिदिन गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, और फिर हम कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अनजाने में या फिर हम बदचे इसलिए एक चीपली ले लेते गुरु महाराज का, गुरु महाराज है रोज ही है ऐसा लगता है। लेकिन भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते कि जैसे गुरु महाराज का भी रोज रिकॉर्डिंग तो देख रहे, लेकिन जो प्रत्यक्ष दर्शन उनका या फिर हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष डाल रहे हैं, जूम पे हमको देख रहे हैं, ये एक अलग अनुभव होता है ना। तो उसका अनुभव नहीं हो रहा है कुछ दिनों से। हाँ, तो अगर भक्तों के मन में अगर विरह का अनुभव होता है कि कब गुरु महाराज दर्शन होंगे, ऐसे अगर भाव उत्पन्न होता है, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गुरु महाराज का विरह अगर हमें सताता तभी क्या हो सकता है, तभी हम अनुभव कर सकते भगवान का क्या विरह हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात है। कहा कि उस शिष्य को कहा कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक हूँ और कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति है, ये कहा, और इसलिए दोनों का विरह होना बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए हम भक्ति से इसमें बताया कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी मनुष्य शिक्षा में लिखते हैं कि हमें गुरु को, गुरु के प्रति या फिर जो अलग अलग बताया उसमें भगवान के प्रति वगैरह, उसमें शुरुआत में गुरु लिखा है कि गुरु के प्रति हमें क्या होना चाहिए कि हमें ऐसा एक अलग एक विशेष संबंध स्थापित होना चाहिए जिससे हमें हर समय ऐसे महसूस होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गुरु की कृपा से कर रहा हूँ। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया या हमें बताया कि मैं गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है गुरु महाराज से मैं दूर हूँ। जबकि गुरु श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज से पहले ही धाम स्वधाम भगवत धाम जा चुके थे, फिर भी प्रभुपाद जी में ऐसे कभी अनुभव नहीं हुआ कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में नहीं, हर समय मेरे साथ में ऐसे अनुभव। क्यों? क्योंकि उनका वाणी का संग मिल रहा है, उन्होंने जो आदेश दिया था उसका पालन मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है। उसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि मैं उस समय अभी डायरेक्ट ये नहीं कर रहा हूँ जपा टॉक, फिर भी आप क्या करो, फिर भी आप जपा सेशन में आप रहो। कुछ भक्तों को लग सकते हैं रिकॉर्डिंग है, क्या है उसमें, फिर भी रिकॉर्डिंग है, फिर भी क्या है वहां गुरु महाराज वहां पे है और हमें संग प्रदान कर रहे हैं। बहुत साल पहले जब मैं बहुत ही नया था, अभी भी बहुत कुछ पुराना नहीं हुआ, तो उस समय मैंने एक प्रभु से प्रश्न पूछा था और एक नए प्रोग्राम था और वहां पे गुरु महाराज प्रभुपाद जी का से फोटो लगाया था। तो मैंने कहा कि मैं इतना तो मैंने सुना है कि भगवान का दर्शन करना, भगवान वहां पे आ जाते हैं, उनको प्रणाम कर वहां स्वीकार करते हैं, ऐसे मैंने सुना है। लेकिन क्या गुरु की तस्वीर या फोटो प्रतिमा रखने से, उनको प्रार्थना करने से क्या वो स्वीकार करते, ऐसे मैंने पूछा था एक भक्त से। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि, इसलिए वहां अगर फोटो भी है तो भी क्या उनको अगर हम प्रणाम करते प्रार्थना करते तो क्या होता है, वो जरूर स्वीकार करते हैं। तो एक सीनियर एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि हम जब संकट आता है तो हम क्या करते हैं, कुछ कठिनाई आती तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो भक्त क्या करता है, पहले सबसे पहले गुरु को प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको पता है गुरु को प्रार्थना करके गुरु क्या करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि जो मेरा शिष्य है बहुत ही मतलब भक्ति में कमजोर है, इसको और थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आप क्या कीजिए, इस पर कृपा बरसाइए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और हम अक्सर पूछा जाता है कि गुरु महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं और फिर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम भले क्या प्रार्थना कर सकते हैं गुरु के लिए, है ना, हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम क्या कर सकते। लेकिन इसे हम ये एक बात बहुत विशेष बात है इस समझने के लिए तत्व की दृष्टि से, जब ध्रुव महाराज की माँ जो थी सुनी थी, उनकी सगी माँ, और जब ध्रुव महाराज बड़े प्रताड़ित हुए सुरुचि के शब्दों के द्वारा, सुरुचि ने कहा कि तुम्हें अगर वास्तव में तुम्हें अपने पिता के गोद में अगर बैठना ही है तो क्या करना होगा, तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा, मेरा पुत्र बनोगे तभी तुम्हें संभव है कि तुम यहाँ पे अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। और क्या करना होगा तुम्हें, वो भगवान नारायण भगवान ही कर सकते कुछ, उनके पास जाओ जंगल में। तो जब माँ से कहा, बहुत रो रहे थे ध्रुव महाराज, और फिर सुनीति ने कहा कि पुत्र देखो, तब तक तो पता लग गया था, कुछ दासियों ने बताया था उनको कि ऐसे से हुआ, सुरुचि ने ऐसे कहा। तो सुनीति ने कहा अपने पुत्र देखो ध्रुव कि कभी भी तुम किसी के प्रति बदले की भावना मत रखना, लेकिन ये कर सकते हो तुम, जो तुम्हारी माँ ने कहा उसका पालन करो। सुरुचि ने जो कहा, तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर वहां भगवान के लिए तुम बड़ी तपस्या करो, और भगवान क्या करेंगे, तुम्हें विशेष कृपा प्रदान करेंगे। और कोई सोच सकता है, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर, कोई सोच सकता है कि कैसी माँ है, अपने छोटे 5 साल के बेटे को कहाँ भेज रही, जंगल में भेज रही, उसको इतनी भी समझ नहीं उसको कि वहां शेर होंगे, ये होंगे, कुछ होंगे, उसका क्या होगा सोच नहीं रही है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है।
सुनीति क्या कर रही है, ध्रुव महाराज को भेजने के बाद लगातार निरंतर ध्रुव महाराज के लिए प्रार्थना करती रही। हाँ? जबकि ध्रुव महाराज दिखने में तो छोटे, लेकिन एक तो महाभागवत है ही है वो, है ना, कोई साधारण नहीं है। फिर भी उनके लिए प्रार्थना करने का सुनीति स्वयं शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे भगवताम वैकुंठ जा रहे थे, तो उन्होंने विचार किया वहां का क्या होगा, तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, विष्णु तो समझ गए, उन्होंने केवल ऐसे इशारा किया, तो क्या देखा उन्होंने, उनकी माँ भी जा रहे भगवताम। और प्रभुपाद जी वहां लिखते कि अगर कोई मेरा ऐसा शिष्य शुद्ध भक्त बन गया, कोई मुझे लेके जा सकता है, ये उनकी विशेषता है। नहीं तो इसलिए हम गुरु ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करके हम उनको भगवत धाम जाने के लिए सहायता करेंगे, इस भाव से नहीं करना चाहिए। इस भाव से करना चाहिए कि मैं उनके लिए प्रार्थना इसलिए करूंगा जिससे मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा, और भगवान जब देखेंगे ये मेरे भक्त के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे, और मैं गुरु के चरणों में हर समय रह सकता हूँ। तो देखिए वहां प्रभुपाद जी एक विशेष बात भी बता रहे तात्पर्य में ध्रुव महाराज के उस प्रसंग में कहते हैं प्रभुपाद जी की सुनीति मानो कह रही है ध्रुव से, अरे ध्रुव, मैं तो अकेली एक माँ हूं, मैं क्या तुम्हें प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन भगवान नारायण क्या है, लाखों माताओं का प्रेम दे सकते हो। उसके एक माँ के बदले में अगर तुम्हें लाखों माताओं का प्रेम मिल सकता है, तो तुम जाओ वहां पर, तपस्या करो उनके लिए, उनको क्या करो, उनको प्रसन्न करो तुम, ऐसे कहा। तो हम भी कितने भाग्यशाली कि हमें जो लाखों माताओं का प्रेम जो भगवान देते हैं, उन भगवान तक पहुंचाने के लिए हमें क्या है, हमें ऐसे साधु का संग प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है और होगा भी। इसलिए मतलब कितनी करुणा है, तितिक्षा कारुणिका, ये मतलब शुद्ध भक्तों की विशेष करुणा है। वो क्या करते हैं, अपने स्वयं को अपना जीवन न्यौछावर करके, अपना त्याग करके क्या करते, सारे जीवों को भगवान से जोड़ते, जो भगवान क्या है, लाखों माताओं का प्रेम देने वाले। लोगों की चर्चा होती है ना यूट्यूब में, क्या क्या दिखाते, देखो इन्होंने क्या क्या, इस्कॉन वालों ने क्या क्या, देखो माता पिता से छुड़वा दिया, ये किया वो, कितनी क्या क्या देता है। उनको पता नहीं है कि एक माता पिता छुड़ा रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि लाखों माताओं का प्रेम देने वाले कृष्ण से वो जोड़ रहे, वो कहाँ पता है उनको। मराठी में कहावत है, गाढ़ वाला गुड़ाची सौ काय माहित। जो कहता है उसको गुड़ देंगे तो क्या पता लगेगा उसको क्या उसकी मिठास है। इसलिए हम अपने गुरु के प्रति या सच्चे साधु के प्रति जब समर्पित होते हैं, तो वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, गुरु महाराज, कि 16 माला करने से क्या लाभ होता है, तो उन्होंने कहा कि इतना ही याद रखो कि 16 माला करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। फिर कैसे भगवान क्यों प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान जब देखते कि श्रील प्रभुपाद जी का एक गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहा है, 16 माला जप करने का आदेश, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लोग पूछते कि 16 माला कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा नहीं, ये भगवान ने प्रभुपाद से कहा कि ऐसा करो आप, और प्रभुपाद जी का प्रमाण, भागवत प्रमाण, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और इसको करने से गुरु और वैष्णव प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते इससे। और जैसे हम देखते हैं कि गुरुवाष्टक लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी आरती में तो शुरुआत में हम तो भगवान की आरती गाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो क्या होता है आरती में, गुरु का गुणगान होता है, गुरु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे होता है। तो क्यों ऐसे, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने से, गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु सेवक भगवान है और भगवान सेव्य भगवान है। इसलिए सेवक भगवान के माध्यम से हम सेव्य भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये एक सही तरीका है। और श्रील प्रभुपाद जी परंपरा के बारे में बहुत कुछ बता चुके कि परंपरा बहुत जरूरी है, और ये गुरु से परंपरा से हम जब तक जुड़े रहेंगे तभी तक ये संभव है कि हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि जो बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा आती है, वहां पे जब उन्होंने गुरु से मंत्र प्राप्त किया गोप कुमार ने, और गुरु लगातार अलग अलग प्रसंगों में क्या करते थे, गुरु उनको मार्गदर्शन गाइड करते थे कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे करना है। मतलब भगवत धाम जाने तक गुरु पूरा अपने जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिससे श्रील प्रभुपाद के जब तक मेरा सारे शिष्य धाम में नहीं जाएंगे तब तक मुझे क्या, बार बार मैं क्या करूंगा, उनको ले जाऊंगा। उसी प्रकार जो गुरु है, साधु है, वो क्या करते हैं, उनका जीवन ही अन्यों के लिए परोपकार, जैसे हम कहते हैं ना, परोपकाराय इदम नद्या, जो नदी है या वृक्ष है, वो क्या करते हैं, वृक्ष को कभी अपना स्वयं का फल खाते हुए कभी देखा किसी ने, नहीं। जो नदी है ऐसे नहीं कि नदी अपना ही पानी पी रही, नहीं, दूसरों को पिला रही, दूसरों के लिए कार्य कर रही। उसी प्रकार जो गुरु है, साधु है, अन्यों के लिए कार्य करते हैं, जीवों का उद्धार चाहते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, ऊपर से उन्होंने देखा कि
जो ब्रह्मांड के उन्होंने जो बनाया ब्रह्मांड, उसमें नीचे देखा कि उन्होंने 2 सूर्य देखे, 2 सूर्य, 2 सूरज देखे। 2 सूरज कहां से आ गए? मैंने तो इतने 2 कहां बनाए थे? और फिर झांक के देखा कि 2 सूर्य, और ऐसे स्थान में देखा कि वो स्थान उन्होंने अपना बनाया हुआ नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा ये तो मैंने नहीं बनाया है, ये कहां से आ गए बीच में स्थान? तो समझ गए जो 2 सूर्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। देखा कि एक सूर्य और एक चंद्र, है ना। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रो छंदौ तमोनुदा। इसका अर्थ है कि गौड़ देश मतलब जो बंगाल के ऐसे, वहां पे क्या हो गया, ये 2 चैतन्य महाप्रभु उदित हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु वहां भ्रमण कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, और जाते जाते एक स्थान में पहुंच गए। ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर से, एक स्थान में गए वहां, और वहां एक साधु का आश्रम था, और साधु का आश्रम था, और आश्रम वहां पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद 2 मतलब भगवान है, लेकिन हमें एक शिक्षा प्रदान करे कि हमें साधु के पास जाना चाहिए। और साधु के आश्रम में अंदर पहुंच गए, एक साधु बैठे थे वहां पर, दोनों ने दंडवत किया। भगवान ही स्वयं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जो जगत गुरु है, वही स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किया उन्होंने, और प्रणाम करके क्या किया कि कहा कि प्रणाम किया तो साधु तुरंत आशीर्वाद देने लगे, कहा कि आपको बहुत धन मिलेगा, बहुत ही मिलेगा, आपको सुंदरी मिले, बहुत आशीर्वाद देने। आप नहीं, बस 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 बस, ये आशीर्वाद हमको नहीं चाहिए। हमको क्या आशीर्वाद चाहिए? आप ऐसा कहिए कि कृष्णेर मतिरस्तु, हमारा मन हर समय कृष्ण में लगा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ये सच्चे साधु ये आशीर्वाद देते हैं ना। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु महाराज हर समय हमें भगवान की भक्ति में लगाए रखने, इसलिए जपा टॉक है, जपा सेशन है, इसलिए शुरू किया, क्योंकि जिससे हम सारे जीव है, मैं भी अपना भी मेरा विशेष अनुभव है कि जब भी गुरु महाराज जब मतलब जपा सेशन में मैं देखता हूँ, उनका दर्शन करते जप करना मतलब अलग ही अनुभव, अद्भुत अनुभव है। तो हम मतलब उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमें उनका संग या सेवा या उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमें विशेष शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जब तक हम उनकी करुणा को नहीं समझेंगे, बहुत बार होता है ना कि एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रभु दत्त देश। प्रभु मतलब गुरु या कृष्ण, उन्होंने जो स्थान हमें दिया, वहां पे अगर हम सेवा करते हुए उनको प्रसन्न करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। हो सकता है कि वो स्थान हमें अच्छा लगे ना लगे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें जब शक्ति प्रदान करते हैं तो हम उस कार्य को आसानी से निभा सकते हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जो गुरुवाष्टकम गाते जो संसार दावानल, तो उसमें तो पहले जो ये उसमें स्टांजा, संसार दावा नल लीडलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। तो जब हम इसका विचार करते हैं या सोचते हैं तो समझ सकते हैं कि जो हम सारे संसार रूपी मतलब एक अग्नि में हम पूरे क्या हो रहे हैं, मतलब जल रहे हैं। एक बार की बात है, गुरु महाराज और हम आरोड़े से पंढरपुर की आ रहे थे, कार में बैठे थे, गुरु महाराज सामने बैठे थे और मैं पीछे था, और केशव प्रभु हम कुछ बैठे थे पीछे। तो केशव प्रभु ऐसे थोड़ी नींद आ रही थी उनको, थके हुए थे शायद। तो गुरु महाराज पीछे से कहा, केशव क्या हो रहा है? कहा कि महाराज थोड़ा ठंडी हवा लग रही थी, इसलिए थोड़ी नींद आ गई। गुरु महाराज का ठंडी हवा लगी आपको? संसार दावा भूल गया? इतना गर्मी है, इतना पूरा जल रहा है, और आपको ठंडक कहाँ से प्राप्त हो गई? गुरु महाराज पूछ रहे हैं उनको। उनका कहा सही बात है, यहाँ तो सब जल रहा है, फिर मुझे ठंडक कहाँ से आप पहुंच गई यहाँ? तो गुरु महाराज हमें बार बार याद दिलाते रहते कि ये जो भौतिक जगत है पूरा क्या है, पूरा जल रहा है, और इसमें और केवल ऐसे नहीं जल रहा है करके हमको डराते नहीं है, हम पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और कुछ दिन की पहले की बात है कि मैं से स्वप्न में कुछ ऐसे भयावह स्वप्न देखा, ऐसे बहुत डर लगा हमें। गुरु महाराज कुछ ऐसे मन करने लगा, तुरंत मेरा मन शांत हो गया। तो मैं समझ गया गुरु महाराज ने मेरी क्या किया है, रक्षा की है। वैसे तो कुछ होने वाला नहीं था, फिर भी मन है ना, स्वप्न में लगता है कि सही लगता है। तो ये विश्व भी एक स्वप्न जैसे है, स्वप्न से हमको क्या कर रहे हैं, असली स्थान में लेके जाने वाले गुरु है। और इसलिए मैं भी स्वयं भी आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी कृपा प्रदान की जिससे मैं गुरु महाराज चरणों में
मैं बना रहूं, उनके आदेश का पालन करता रहूं, और फिर बस यही जीवन हमारा होना चाहिए। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाय गौर प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज प्रभु। हरे कृष्ण। काफी पावर पैक, और जो कहते हैं अभी की जो सिचुएशन है उस पे आधारित, और उसमें हमें एनकरेज करते हुए किस प्रकार से जो सिचुएशन है वो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से बताएं। बहुत ही विशेष रहा आज का जपा टॉक, जहाँ पर एक प्रभु जी ने समझाया पहले शुद्ध भक्तों का संग या उनके स्मरण या उनकी प्रार्थना या अलग अलग अंग, और फिर महत्वपूर्ण बात कही कि भगवान ही ये अरेंज करते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी प्रगति के लिए, कि कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है, ऑफ कोर्स टेम्पररी है अभी तो, बिकॉज हम गुरु को चीप ले रहे हैं। तो भगवान जो भगवत गीता में या अन्य शास्त्रों में बहुत सारे स्थानों पर कहे हैं कि अगर हम उनका अपराध करते हैं तो हमारी रक्षा करने गुरु है, या जैसे हम भगवान को थोड़ा सा लाइटली चीपली नहीं लेना है, इस बात को अन्यथा ना ले, तो फिर भी गुरु है। जैसे अभी उदाहरण दिया कि संसार दावानल है, अग्नि के समान है, और वहां ठंडी हवा का आभास कैसे हो सकता है। तो गुरु है वो करने, लेकिन जब हम गुरु को थोड़ा लाइटली या चीपली या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, देन कृष्ण हैज टू डू सम हैवी ट्रिक्स। और साथ ही में मैं इसी पॉइंट पे थोड़ा स्मरण भी कर रहा था, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु हमारी तरह बद्ध नहीं है, या भौतिक शरीर में नहीं है, या वो भौतिक नहीं है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है, नित्य मुक्त है, शुद्ध भक्त है। तो जब भी गुरु के स्वास्थ्य में कुछ बिगाड़ या अवरोध आता है, तो उसका एकमात्र कारण है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मुझे भी कोविड हुआ था, महाराज को भी कोविड हुआ, ठीक है, मैं ठीक हो गया, महाराज भी ठीक हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, महाराज को भी कुछ नहीं हुआ। या कुछ भक्त कहते हैं अरे मैं तो 5 दिन में ठीक हो गया था, जूम पे आ गया था, महाराज अभी 1 हफ्ता हो गया नहीं आ रहे, क्या चल रहा है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रही। हाँ, महाराज शायद वृद्ध है, उनकी एज ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए महाराज ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये सारे भौतिक विचार है जो हमें तुरंत त्यागनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ये कहा है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु को हमें हमारे स्तर पे लाके कभी नहीं सोचना चाहिए, या हम भौतिक है, गुरु भी भौतिक है, मुझे कोविड हुआ, महाराज को भी कोविड हुआ, सबको हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे विचार हमें आते हैं कि ये वो, तो प्रभुपाद इस विषय पे बहुत ही सरल या बहुत ही सिद्धांतिक जवाब दिया है कि जब भी गुरु के स्वास्थ्य में अवरोध आता है, उसका एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई शिष्य, या एक या बहुत सारे, या तो 16 माला ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, या 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या जो भी है, कहने की बात है ये हमारी काइंड ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, उसी की वजह से है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर कार्य करना है, या हमें जोर देना है कि कहाँ हमारी तरफ से लैकिंग है। तो इसीलिए हम भक्तों से कहते रहते हैं प्रार्थनाएं कीजिए और अपनी साधना पर भी ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर हम हमारा कार्य, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, डॉक्टर्स अपना कार्य कर रहे हैं और हमें हमारा कार्य करना है, तो प्रार्थना करना तो एक महत्वपूर्ण कार्य है ही, सेवा है, जैसे धर्मराज को बताया, हमारे शुद्धिकरण के लिए। लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान देना है कि लाइक हमने जो गुरु को वचन दिया है, क्या हम वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और सच्चाई से निभा रहे हैं या नहीं। तो धन्यवाद धर्मराज प्रभु आज की इतनी महत्वपूर्ण जपा टॉक के लिए। और पुनः कह रहा हूँ, जो अवस्था है उसको उस पे आधारित आपने बहुत ही सुंदर ढंग से शास्त्रों के आधार पर हमें समझाया किस प्रकार से ये सिचुएशन आई है और किस प्रकार से इस सिचुएशन से हम बाहर जा सकते हैं। You showed the problem and you gave the solution.
थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, परंपरागत पद्धति से धर्मराज प्रभु का हम आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी की जानकारी के लिए और आप सभी के प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की हेल्थ में काफी सुधार हो रहा है। और कल जो रविवार का दिवस था, कल 1 सप्ताह हुआ था गुरु महाराज को यहाँ आके, और फिर गुरु महाराज ने कल इसका स्मरण भी किया था और 1 सप्ताह में काफी इम्प्रूव हो गए हैं। और अब गुरु महाराज ने अपनी वॉक्स भी प्रारंभ कर दी है। तो आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसे नहीं है कि गुरु महाराज बेड रिडन है या पूरा दिन बिस्तर में लेटे हैं। गुरु महाराज तो जो भी डॉक्टर आते पूछते रहते हैं, कैन आई गो फॉर माई वॉक, कैन आई गो फॉर माई वॉक। तो डॉक्टर कहते हैं प्लीज महाराज यू मस्ट वॉक। तो गुरु महाराज अभी वॉक भी कर रहे हैं, लगभग आधा घंटा भी एट स्ट्रेच चल रहे हैं बिना किसी अवरोध के। तो जैसे हमने कहा था कि कल का दिन जो था गुरु महाराज का, उनका जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट था उसका अंतिम दिवस था। और अब डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लगभग 85-90% ठीक हो चुके हैं। बस जो 10-15% बचा है वो थोड़ा सा साथ में जो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना होता है कि जितना भी नुकसान हुआ है शरीर को वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, या पूर्ण रूप से उस नुकसान को निकाल दिया जाए या ठीक कर दिया जाए, उस पर कार्य किया जाए। तो वो चल रहा है। तो आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए आपके सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः आभार कि आप सभी ने अपनी जो भी श्रद्धा से भक्ति से गुरु महाराज जी के शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य में परिवर्तन और सुधार के लिए प्रार्थना की। और जैसे अनंत शेष प्रभु ने हमें कल भी याद दिलवाया, उनके भी आप पुनः याद करवा रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सच में हम मानेंगे, वास्तविक रूप में हम मानेंगे गुरु महाराज ठीक हो गए जब गुरु महाराज हमारे बीच प्रकट होकर, अभी भी है, प्रकट है ही। तो दो सिद्धांत के रूप से तो है ही, लेकिन वास्तविक रूप से जूम पर भी है। तो गुरु महाराज भी ये सब, जैसे हम रोज कहते हैं कि गुरु महाराज प्रत्येक रूप से देखते हैं, सुनते हैं, जपा टॉक्स भी सुनते हैं। तो अभी भी है भी, लेकिन जैसे हम सब इस बात से सहमत होते हैं कि जिस दिन गुरु महाराज हमें जपा टॉक देंगे उस दिन से, क्योंकि हम बद्ध है ना, तो सीइंग इज बिलीविंग चलता है। गुरु महाराज कहते हैं भौतिक जगत में सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं बिकता है। सो वो दिन की राह देख रहे हैं हम, जिस दिन गुरु महाराज अपना निजी संग सानिध्य, और जैसे धर्मराज बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग किए, कृपा कटाक्ष हम पे डालेंगे गुरु महाराज। उस दिन हम सोचेंगे कि हाँ, अब हमारे गुरु महाराज वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ठीक हो गए हैं। तो बस आपसे ये सब अपडेट्स देनी थी कि कोई चिंता का विषय नहीं है, और बहुत ही जल्द कुछ आने वाले दिनों में ही संभवतः गुरु महाराज अपना संघ हमें प्रदान करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए। और आपका जो अनुष्ठान या हमारा जो अनुष्ठान है सभी गुरु महाराज और उनके गुरु भाइयों के लिए, जैसे श्री जयपताका स्वामी महाराज का स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है, या ऐसे कहना भी उचित नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है बिगाड़ की ओर ही है, तो उनके लिए प्रार्थनाएं जारी रखिए। तो हमारे लिए ये सभी आचार्यगण महत्वपूर्ण है। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद प्रकट करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जप टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।